کورونا نے مزید 35 افراد کی جان لے لی، اب تک 594 اموات، مریضوں کی تعداد 25,837 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 10,033، سندھ میں 9,093 کیسز، خیبر پختونخوا 3,956 اور بلوچستان میں 1,725 افراد متاثر۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کل سے مرحلہ وار ختم، ہفتے میں 5 روز کاروبار کی اجازت۔ اسلام آباد اور تمام صوبوں میں 2 روز دکانیں بند رہیں گی۔ قومی رابطہ کمیٹی نے ضابطہ کار منظور کر لیے، عمل درآمد نہ کرنے والی دکانیں سیل کر دی جائیں گی۔ ایس او پیز کے تحت کاروبار کیا جائے، ڈنڈے کے زور پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے، عوام کو ذمہ داری لینا پڑے گی، ایک قوم بن کر اگلے فیز میں جائیں گے۔ وائرس تیزی سے پھیلا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ وفاق کے ڈرافٹ میں کنفیوژن ہے، سندھ حکومت کا کئی فیصلوں پر تحفظات کا اظہار، وزیر اعظم کے اعلانات پر عمل کریں گے۔ ناصر حسین شاہ کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم 10 تاریخ سے ٹرینیں بھی چلا دیں، لیکن تمام صوبوں کی ہم حمایت حاصل نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب نے ایز اے ڈیموکریٹ پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس کو 2-3 دن مزید کنسیڈریشن کے لیے رکھا ہے۔ میری پوری خواہش ہے کہ غریب کی سواری ریل گاڑی کو عید سے پہلے دوبارہ شروع کیا جائے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی ٹرین چلانا چاہتے تھے مگر صوبوں سے حمایت نہیں ملی، امید ہے وزیر اعظم عید سے پہلے آپریشن بحال کرنے کی اجازت دے دیں گے، شیخ رشید کو یقین۔ پاک فوج کا کورونا کے خلاف دیگر اداروں کی معاونت جاری رکھنے کا فیصلہ، مشکل گھڑی میں متاثرہ افراد تک سہولتیں فراہم کی جائیں، آرمی چیف کی سی ایم ایچ کو ہارٹ کے دورے پر ہدایت۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی سپہر 3 بجے طلب کر لیا، کورونا کے باعث احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے گا۔ بے احتیاطی کورونا پھیلانے لگی، پاکستان میں 86% مریضوں میں مقامی طور پر وائرس منتقل ہوا، 14% متاثرین بیرون ملک سفر کے دوران متاثر ہوئے، عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ۔ لاہور میں شہباز تتلہ قتل کیس میں پیش رفت، پولیس نے مفخر عدیل کے خلاف چالان سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا، دوران تفتیش ایس ایس پی نے اقبال جرم کر لیا، چالان کا متن۔ کورونا کے آغاز سے اگلے 9 ماہ تک پاکستان میں 50 لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع، زچہ بچہ کے حوالے سے جنوبی ایشیا میں صورتحال باعث تشویش، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کی رپورٹ، شعبہ صحت میں مناسب اقدامات کی اپیل۔ ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ منفی، امریکی صدر نے چین کو پھر نشانے پر رکھ لیا، مہلک وبا پھیلانے کے شبے کا اظہار، چین کی ووہان لیب میں وائرس کے حوالے سے کچھ ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کورونا نے 24 گھنٹے میں مزید 35 افراد کی جان لے لی ہے، تعداد 594 ہو گئی ہے، ملک بھر میں متاثرہ افراد کی کل تعداد 25,837 ہو گئی ہے، جبکہ 7,530 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، جہاں پر 10,033 افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 35 افراد کی جان جانے کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 594 تک پہنچ گئی ہے۔ صوبہ سندھ میں 9,093 افراد ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 4,000 یعنی 3,956 مریض سامنے آئے ہیں۔ بلوچستان کی بات کریں تو 1,725، گلگت بلتستان 394 اور اسلام آباد میں 558 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
कराची समेत सिंध भर में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन है। मसाजिद में 3 से 5 अफराद को नमाज की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने विफाक के कई फैसलों पर तहफ्फुजात का इजहार किया है, जबकि लॉकडाउन से मुतालिक आज फैसला किया जाएगा। जबकि पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान किया है। कल से सूबे भर में छोटी मार्केटें और दुकानें खुलेंगी। से बचाव के लिए इकदामात। सिंध में आज 3 घंटे के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कराची समेत सूबे भर में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को नमाज की इजाजत होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। शहरी घरों से बाहर ना निकलें। विफाक की जानिब से लॉकडाउन से मुतालिक किए गए फैसलों पर सिंध हुकूमत ने तहफ्फुजात का इजहार किया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर तहफ्फुजात हैं, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में वजीर आजम के ऐलानात पर अमल करेंगे। मुल्क के वसीतर मफाद में और एक जैसा सिलसिला रखने में ज़रूर हम अमल करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी तरफ से जिस तरह का तरीक़ेकार आया है, कुछ चीज़ों पर हमें मे बी रिजर्वेशंस हों, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन एक अच्छा तासुर देने के लिए हमें सब ने साथ चलना है। ज़राए का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक फैसला सिंध हुकूमत आज करेगी। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान किया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हफ्ते से मजीद सनतों और मुतल्लका कारोबार खोलने की इजाजत होगी। छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। अस्पतालों की OPDs भी खुल जाएंगी। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दूसरी जानिब वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारे ना खोलना एक मुश्किल फैसला है। उन्होंने कहा कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के इम्तिहानात एक साथ लेने का सोच रहे हैं। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। सारे सूबों के साथ मुशावरत की, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से मुशावरत की, तो हमें यही लगा कि 6 हफ्ते और बंद करने की जरूरत है। और इसमें उम्मीद है कि हम अपने SOPs को भी बेहतर कर लेंगे। ज्यादा मुश्किल फैसला जो था वो इम्तिहानात के बारे में था, लेकिन हमने ये भी देखा कि बोर्ड के इम्तिहान कराने के लिए भी जो भी बंदोबस्त इंतजाम करेंगे, उससे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको खतरा होगा। मुश्किल फैसला ये किया कि हम इम्तिहानात जो है उनको मनसूख कर दिया गया। प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो तो अपना एंट्री टेस्ट लेते हैं, जिसका जो उनका उसका वेटेज है वो तकरीबन 80% तक का होता है। यूनिवर्सिटीज के साथ भी, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी कंसल्टेशन हुई। उन्होंने कहा कि हम 11वीं के रिजल्ट की बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज में दाखिला दे सकते हैं। एक इशू आया कि 9th क्लास जो है उसका एग्जाम अगर बच्चे नहीं लेंगे तो 10th में चले जाएंगे, तो उसमें भी एक सोच है कि कंपोजिट एग्जाम कर दिया, जैसे पुराने जमाने में होता था कि एक ही इम्तिहान मैट्रिक का हो जाए, इसी तरह का एक ही इम्तिहान आइंदा अगले साल FA का हो जाए। वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि कल से मुल्क भर में मरहलावार लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। कारोबार खोलने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल तौर पे कारोबार बंद होंगे। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद से उमर जट, कराची से नवीद कमाल और लाहौर से जाहिद आबिद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले कराची चलते हैं, जहां नवीद मौजूद हैं। नवीद, कहिएगा, आज 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा कराची में, बल्कि सिंध भर में, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर सूरत हाल की बात करें तो लॉकडाउन कहीं नज़र नहीं आता। सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक ही है। जो लॉकडाउन से कबल जुम्मे को जितना ट्रैफिक हुआ करता था उतना हम सड़कों पर देख रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से 12 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का कहा गया है। नाकों को जो है बंद कर दिया जाएगा और तमाम ट्रैफिक को जो है वापस जाने का कहा जाएगा। और इस दौरान जिन दुकानों को, मेडिकल स्टोर्स को, करियाना स्टोर्स को और दूध की दुकानों को खुले रहने की इजाज़त होती है, उन्हें भी जो है बंद करा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से चूँकि कल मरहलावार खोलने का ऐलान किया गया है, इस हवाले से जो है ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत आज मुशावरत करेगी और इस हवाले से जो है अहम ऐलान मतवक्के है। जुम्मे की नमाज के हवाले से जो SOP है उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। 3 से 5 अफराद ही जो है नमाज जुम्मा अदा कर सकेंगे। आज चूँकि 47वां दिन है लॉकडाउन का,
और डबल सवारी पर भी पाबंदी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डबल सवारी की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। ताहम सिंध हुकूमत के ज़राए का कहना है कि डबल सवारी पे जो पाबंदी है वो कराची और हैदराबाद में बरकरार रखी जाएगी और इस पर जो है अमल दरामद भी कराया जाएगा। जो दुकानें, जो स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नवीद हमारे साथ रहिए, लाहौर चलते हैं, जाहिद आबिद से बात करते हैं। जाहिद, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जितनी पूरी कर सकती थी कर ली, लॉकडाउन किया, लोगों को रिलीफ फराहम किया, अब बहरहाल शहरियों की जिम्मेदारी का वक्त है। क्या देख रहे हैं लाहौर की सड़कों के ऊपर आप? जी बिल्कुल, लाहौर की सड़कों पर जो सूरत नज़र आ रही है वही है जो गुज़श्ता 45 रोज़ से हम देख रहे हैं। आज 46वां रोज़ है लॉकडाउन का। इससे पहले लॉकडाउन का नाम दिया गया, फिर जुज़वी लॉकडाउन का नाम दिया गया और फिर स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया और अब कल से इसमें मज़ीद नरमी करते हुए इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। ताहम इस वक्त तक जो सूरत हाल है सड़कों पर वो बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह हुकूमत चाहती है, इंतज़ामिया चाहती है, तिब्बी माहिरीन चाहती है। हमें सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक रवां दवां नज़र आती है और कल से जब मज़ीद मार्केटें खुल जाएंगी, कारोबार खुल जाएंगे, ज़िंदगी तकरीबन एक एहसास हो जाना शुरू हो जाएगा कि ज़िंदगी खुल चुकी है, तो सड़कों पर क्या सूरत हाल होगी ये अब कल पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक ये सूरत हाल है कि कानून नाफज करने वाले इदारे मुतहर्रक हैं, उन्होंने कोशिश करनी पड़ रही है लोगों को डबल सवारी से रोकने की, गाड़ियों में ज़ायद सवारियों पर पाबंदी की, रिक्शा में ज़्यादा सवारियों की पाबंदी की। तो इस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं जिसमें अब ये जो नए फैसले हुए हैं इसमें भी अभी तक कन्फ्यूजन सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि छोटी मार्केटें खोली जाएंगी, अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि छोटी मार्केट का फार्मूला क्या होगा, उसे किस तरह पहचान की जाएगी ये छोटी मार्केट है। और दूसरा कहा जा रहा है कि हफ्ता और एतवार से कारोबार बंद रहेगा और कल ही कारोबार खोलने का ऐलान किया गया और कल हफ्ता है। अब ये किस तरह होगा ये अभी तक वाज़ेह करना ज़रूरी है और इंतज़ामिया यकीनन इस सिलसिले में काम कर रही होगी। हुकूमत ने बाल अब अवाम के कोर्ट में फेंक दी है कि आपने अपने आप को संभालना है, अपने आप को महफूज रखना है, बिल्कुल अवाम पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। उमर जट की तरफ चलते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उमर, कहिएगा, जिस तरह से ईज आउट करने का कहा गया है, कल से लॉकडाउन को नरम कर दिया जाएगा, इसमें मजीद नरमी की जाएगी, तो मजीद एक दिन का इंतजार करना होगा। आज क्या सिचुएशन है वहां पर? इस्लामाबाद में तो अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से जो पहले SOPs बनाए गए थे और जब 9 मई तक एक्सटेंड किया गया था और उसकी सिचुएशन को सामने रखते हुए तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के ताजरों ने भी मुलाकात की थी जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनके साथ और उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए थे और उसके बाद वो कल कौमी राब्ता कमेटी में भी रखे गए। आज इस्लामाबाद में जो शॉप्स हैं वो उसी तरह बंद हैं, ताहम जो जिन शॉप्स को पहले खुलने की इजाज़त दी गई थी जिसमें खाने पीने की अशियाएँ और अशिया ज़रूरिया की जो शॉप्स हैं वो अभी तक वो खुली हुई हैं, लेकिन जो बाकी शॉप्स हैं जिसमें छोटे कारोबार जिसकी बात की जा रही है वो चूँकि अब हफ्ते के रोज़ से खोलने की बात की गई है, तो अब चूँकि आज जुमा है, अब कल ये सूरत हाल सामने आएगी कि अब कौन कौन से कारोबार जो हैं वो कल से ओपन होने जा रहे हैं और इस्लामाबाद में किस लेवल पर जो मार्केट्स हैं उनमें दुकानें खुली रखी जाएंगी। तो कौमी राब्ता कमेटी ने तो पॉलिसी एक वाज़े कर दी है और उसमें 5 रोज़ कारोबार होगा और 2 रोज़ छुट्टी होगी, 2 रोज़ कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं होंगी। ताहम अब ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से क्या लाहे अमल अपनाती है और क्या हिकमत अमली अपनाएगी, क्योंकि इसमें जो दीगर अब उस पर डिफ्रेंशिएट जो एक मार्केट है वहाँ पर जो SOP इस सिलसिले में कोई वाज़ेह फैसला करना है। इस्लामाबाद से उमर जट, कराची से नवीद कमाल और लाहौर से जाहिद आबिद। अपडेट करने के लिए आप तीनों का शुक्रिया। खबर यह है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम के जरिए बताया है कि तमाम चाहने वालों से दुआओं की दरख्वास्त भी की है, अल्लाह मुझे इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दे और शिफाए कामिला अता करे। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुझे ऐसे हालात में मुकाबला करना सिखाया। इससे कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के अहले खाना के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं जो कि मनफी आए थे।